Now, whenever I was putting up some stocks into the into any kind of a forum like Facebook, WhatsApp, I used to get a lot of personal messages, sir. How do you find out stocks? So I have stopped not doing too much of intraday, and I have gone more into the positional traders. And I personally find that doing on a positional basis or a swing trade basis is giving me more returns as compared to what is I'm getting from even TradeTron. I have surpassed my swing trades have surpassed my TradeTron results. So I'm more into now swing trades, and I'm not married to any stocks. So I make a lot of screeners whenever I keep on doing it, and I find new ideas of making some screeners into it. Now coming on to, I will just switch off all these things. Just bring in the. So I have stopped using too many indicators on chart because I like to have indicators which are telling me a stock. But just for your reference sake, I will try to make a kind of a screener when I show you. Now, this is one stock which I missed yesterday very badly. Had I picked it up, 114 to 136 today. I missed it yesterday. It had come in my screener that it is going to just fly. It may fly, it may not fly. It is how you take it in this way is. Even if a screener gives me a kind of a indication, I do not go below a daily time frame, whatever may come. My preferable is a weekly breakout, but if not, if I'm going to take a trade at the fag end of the day, minimum breakout is what I'm going to look is a kind of a daily kind of a breakout. So this is how I picked up the stock yesterday, and I missed it. I couldn't punch it the order and it didn't mature. Now, this was an absolute breakout of almost, let's say, 3 months. These are so many candles, maybe 2 or 3 months, whatever it is. We'll just convert it on a weekly time frame basis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 months. It had broken this level yesterday on a daily time frame. I'm not using any indicator for it. Just I'm telling you, I'm not using any indicator for it. And this was a gap up opening. I placed my order here only at 115, but it never matured because it had already flown. My levels for Nitin spinners was already placed here. Same funda. It came down, but it went up as high as 295. And I picked it up at whatever price it closed. So 12 rupees, which is close to be around about 4%. Same was Imami Reality. Same funda. I'm just trying to show you this is a funda of taking a stock. I pick it up where it's going to close to its weekly breakout, and I see whether what's it's doing on a daily time. It had broken here. I took the trade. Now from this opening 78 rupees, you can see to 83 rupees, 4 rupees. It had already given me 6.58%. I exited at the fag end of the day. Kalyani Forge. They all have come into the screeners. This is your levels. This is a weekly level which has come. This was the breakout, 295, one circuit, two circuit.
I have drawn the lines. I have already tested this strategies in multiple forms. We are having a bullish kind of a market right now. So my target for Shalby is 246, which it will touch in a day or two. And I'm very sure about it, it will touch it. So this is the Chemplast Sanmar Limited. And my target is 658 for it. I'm into quick heel also. Quick heel I've taken again on the same funda. It is testing its level. And I'm looking at 219 to exit out of the stock. Odisha Mines, I missed it very lower down. You can see I missed it here and it reached almost 1,000 rupees up. You can just forget this thing is if you can mark the weekly high of all the stocks like this and trade the breakout. $36.60 and we are at almost 1,000 points up. So I'm not using any kind of any indicator onto it, how I calculate it, how it goes it. Now this stock has again given me a breakout and this is on a weekly time frame. I'm waiting for the stock tomorrow to close above this. On a daily time frame, if it closes above it, there is a small green candle out here. This is a good trade for me, keeping this as my stop loss. I usually don't keep a stop loss. I'm just telling for everybody because I'm not SEBI registered. So I pick up stocks like this. KNR Constructions. I'm just discussing this offhand. My lines are drawn. This is a level it has to breach before I take it. Otherwise, I'm not going to take it. It's again on the weekly level. So the lines are drawn. And how I draw a line is, we'll just remove the drawings. Pick up the highest wick you have. Then pull it down where it touches the maximum wicks. Next is draw it where you see the body. At least it should touch 3 bodies. One, two, and three. And now convert it into daily time frame, and you see the magic. So it will come out as the very good kind of a screener. Now what we are going to do is, we are going to plot 2 SMAs. You like SMAs or EMAs or WMAs? Anybody? EMA, sir. EMA. Everybody wants fast system. So we'll plot 2 EMAs. And our funda is what we do for a daily time frame. We have a 20 and a 10 and 20 crossover. You have a crossover here, you have a crossover here, you have a crossover here also. Had you picked it up here, you would have still made good amount of money. Now, if I say I make it on a weekly time frame, how will it work? So let's go and see in big stocks. सर आप अल्ट्राटेक में यहाँ के हैं 6400 के अभी तक आप एग्जिट नहीं किए हुए हैं. Let's go and see what is State Bank doing. I don't know. I have no idea. You would have entered here और आप अभी भी State Bank में बैठे हुए हो. You're not exited it. Somebody who is a kind of a good swing trader, patience वाला, मेरी तरह नहीं, बड़ा impatient. Maruti is here, 8800, and we are still sitting at 9500. Then is Reliance, push 2200, and you are still into the trade. Access, still into the trade.
Now, how will you come out to do it? How you will actually find out a stock like this is. So let's start from a scratch. Now this is a weekly 10-20 crossover with an RSI of 70 for a stocks more than 50 rupees. And these are the stocks, 14 stocks which are in my hit list for tomorrow. I'm being very honest on it. These are on my hit list for tomorrow. And I'm going to actually look into these stocks and I don't go blindly into any kind of a screener and if it has given me. I will assess all the stocks which has come into it. So let's start creating a screener. So there is a word known as create scan. So we'll go and click onto it. Just hold on a second. My phone is ringing. So whenever we go and create a screener is everything is in front of us is how we want to do it. So what we are going to do is there is a plus button out here is plus. Now what we want our first condition is 10 EMA. So we'll just type EMA here. Now after it comes down is we don't want it equal to or this thing or greater than it will start giving us a lot of stocks. Just let me know, make it very clear for you is. Now let's say is we place, I'm just telling you how important how you filter out the stock is. Stock value close greater than number 20. That means all the stocks which have closed have price more than 20 rupees and have closed today will, if I run it, now you see how many stocks it has given me. 1838 stocks it has given me. Practically none of the big institution can or go and buy it. So what I do is I go and change the price to 50 rupees. And what happens is still I get 1627. Not practically feasible for me to take all these stocks. So now I will start adding condition which suits me. So I want an EMA. Now which EMA we want which has just crossed above the 20 EMA. So there is a 20 EMA which has come as a default. So I will put up a 20 EMA. The latest means it is for the daily candle close which has happened. So what I want is I want a weekly EMA. Click onto it, make it 10, crossed over latest. We again cross it over and make it weekly. So it's a close of a 10 EMA over a 20 EMA. Now just run it. You're left with 18 stocks valued over 20 rupees, which you can just go and take a trade into it. Now don't go and jump into any stock which you like it. Now the funda of telling you that concept of a weekly and then a daily breakout will come out here is. Trust me, even if you are 60% successful, अगर आप 60% भी successful हो, तो you will make good amount of money. Now we'll go and see all these things. We'll see few of the stocks. Now, few of my friends say, यार ये 10-20 crossover का मतलब नहीं होता. आप ना एक weekly RSI लगा दो इसमें. So I want a weekly RSI should be greater than number. So RSI is always in a number is, and you say it should be more than 60. So I'm bullish. And then run it. It is 14. So if you take a weekly RSI interval of 14 and you keep a number of 60, so your stocks decrease by 4 more and you do it. You make it 70. Hyper bullish stocks.
you're left with only 6 stocks. सर फंडा समझ आया इसका अभी तक? यस सर। आई एम गोइंग टू सेव द स्कैन. इसका क्या नाम रखें? आज का क्या डेट है? 24.08.23. Submit. It will come in my scans. डॉक्टर साहब आरएसआई वीकली पे चेक करना है कि डेली पे चेक करना है? सर वीकली में एक समझो सर, मुझे ना बीच में आप रोक देते हो, मैं कुछ काम कर रहा था, मैं ना मैंने क्या उसमें वीकली कर दे, डेली कर दे? ओके सर, सॉरी. हाँ हाँ क्या हुआ यार? जान दे यार, आप इसको वीकली पे कर लो सर. सॉरी, आई मिस दैट पार्ट. इज आपकी एक ही कंपनी रहेगी, आपकी एक ही कंपनी रहेगी. अब इसके अंदर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, अब हम ये देख लेते हैं. क्या नाम था इसका सर? मुझे तो नाम भी नहीं याद है. एनबीआई, एनबीआई इंडस्ट्रियल. सर मजा आया? हाँ सर, बढ़िया है। आया मजा? मैं आपको अब इसका फंडा दिखाता हूं सर, अब इसको बड़े ध्यान से देखना. ये आपका वीकली लेवल से 3 बॉडीज को टच करना चाहिए. हो गया? ये आपका कल ब्रेकआउट आ गया था. कल परसों में ये ब्रेकआउट जब आया उसके बाद उसी लेवल पे खड़ा है अभी भी. सर ये ऐसे उठाते हैं. अब इसको हम और थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं. हम ये करते हैं कि हम इस आरएसआई को, सर उसको चेंज कर लेना, इसको 60 कर लेते हैं एंड वी डिक्रीज दिस वैल्यू टू 10. दैट इज कि लास्ट 2 हफ्ते की जो वैल्यू हो वो 60 से ऊपर हो और हम बुलिश हो. आप देखो सर, 12 स्टॉक्स आ गए आपके पास. नाउ लेट्स गो एंड डू ऑल दी स्टॉक्स वन बाय वन. इमामी में आपको दिखा चुका हूं. लिबर्टी शूज मैंने किसी ग्रुप में डाला था अपने कि मैं लिबर्टी शूज में बुलिश हूं. आपका लिबर्टी शू ने आज दे दी है सर. फर्स्ट मेरा पहला टारगेट इसके लिए ये है 277. लेट्स सी वेदर इट्स गिविंग इट ऑन मी नॉट. ये आपका इस लेवल पे एंट्री थी 258 में एंड आई एम ट्राइंग टू विल एग्जिट समवेयर अराउंड 278 के करीब. आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक ऑलरेडी. ये तो मैंने नीचे डबल बॉटम पे उठाया था, वीकली डबल बॉटम में. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑन दिस थिंग, ऑल दिस इंडिकेटर्स. आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड बाय इट. सो मेरा टारगेट अब इसमें ऐसे मैंने लिबर्टी शू में बनाना है. अब इसको डेली पे मैंने देख लेना. सो मेरा अगर एंट्री लेवल यहां पे है, so this is going to be my stop loss level and I'm going to go for this much target. Next is West Coast paper मैंने दिखा दिया. Zydus Wellness है सर. I will not take a trade till it doesn't come fit into my system. If it fits in my system, then only I'm going to take a trade into it. ये मेरे सिस्टम में फिट बैठ है. मेरा वीकली का ब्रेकआउट आ गया. नेक्स्ट लेवल भी ये ब्रेक कर चुका है. सो इसके ऊपर वाला लेवल जो मेरे लिए खुला है, दैट इज दिस वन. सो आई एम गोइंग टू प्ले फॉर 100 रुपीज मोर इन Zydus Wellness. अब ये इसका आप देख लो, चार्ट आप लगा के देख लो, इस लेवल के ऊपर क्लोज करके. So I can keep this little below this as my stop loss and just take it for almost 1:2 का रेशियो में मैं आराम से इसको ले लूंगा. नेक्स्ट इज जुबिलेंट इग्निवेरा.
Again, it has come into my system. Breakout आ गया weekly का, and this is the level I'm looking at, 543, 60 rupees up. कल इसमें एक हल्का सा छोटा सा स्विंग आए, and I'm taking the trade in. मैं यहाँ के लिए खेलूंगा इसको आराम से बैठ के. मैंने कोई मेहनत नहीं लगानी कि मैंने कोई स्टॉक ढूंढना है. इमामी पेपर मिल्स, ये तो मैंने आज देखा था, पर इसके ऊपर ध्यान रखना, ये अगर टूटा, ये गया ऊपर, ये रॉकेट की तरह जाएगा ऊपर. पेपर मिल्स में जिस दिन आग लगी, इसके ऊपर बंद होने दो सर. फर्स्ट टारगेट फॉर यू इज द स्टॉक. फंडा यही है कि हमें हमारे लेवल के ऊपर ब्रेक होना चाहिए. अगर उसके ऊपर मिनिमम डेली की क्लोज आएगी तभी हम लेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट. द होल एक्सरसाइज ऑफ टेलिंग यू ए 10-20 क्रॉसओवर इज, हमारा वीकली का रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, एंड वी आर टेकिंग ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स. वी आर नॉट टेकिंग ऑन सपोर्ट. मैं आपको वीकली सपोर्ट लेवल्स वाले नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रेकआउट करा रहा हूं. एंड प्लीज, फॉर गॉड सेक, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक ए ट्रेड विद मी. इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, देन इट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंस. अब आप तमिलनाडु प्रिंट्स का देखो. ये तो ये मैंने कल ले लिया, लेना है न्यूज प्रिंट्स. फिर आपका ब्रेकआउट आ गया इसमें. चलो मैं इसकी विक्स को ऊपर टच कर देता हूं. आपका ब्रेकआउट आ गया इसमें. क्या हमारा स्टॉप लॉस है? नॉट मच. सो यू कैन टेक ए ट्रेड वेरी इजिली. फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन आपका. ये तो आपका इसने आज ही टच कर लिया था, कल में टच कर लिया इसका. अगर वीकली का तोड़ेगा तो वो आपका मंथली का टारगेट पकड़ेगा, और मंथली का टारगेट कहां पड़ेगा आपका? 386. So I'm looking at this to close above this now. 268 के ऊपर ये मेरे टारगेट में है स्टॉक, एंड मैंने इसको लेना है फॉर दिस टारगेट. मैं इसको इसके लिए खेलूंगा. So unless you don't pick up a stock in any form you want to do it, so you are not going to get the stocks. Now KNR Constructions मैंने आपको दिखा चुका हूँ, NBI दिखा चुका हूँ, लिबर्टी शूज, जेट एयरवेज. I don't like, प्लीज अवॉइड जेट एयरवेज यार, बहुत ही घटिया स्टॉक है. जो एयरलाइन बंद है उसका स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, और जो चल रही है उनका नीचे है. Now this is क्रॉम्पटन ग्रीव्स. क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आप, मैंने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की हुई, ये मेरे उसमें है, टारगेट में है, ये मैं कल लूंगा जो मर्जी हो जाए. Now this is closed above it. Now I will see today's daily candle. ये इसके नीचे नहीं आया ना, तो कल इस लेवल पे लूंगा, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस. एंड मेरा टारगेट बहुत ऊपर है, 352. So this is how I pick up a stocks for the next day. आप अर्ली मॉर्निंग में बिड डाल दो, प्री ओपन में बिड डाल दो करीब 300 के करीब की. आपको अगर मिल गया नीचे स्विंग में, और अगर उसके बाद ऊपर दौड़ा तो आपके पास है. और आपका स्टॉप लॉस क्या है? 293, ₹7 का. नीचे आ गया, हमारी किस्मत खराब है, क्या कुछ नहीं कर सकते हम, बट हमारा टारगेट ऊपर बहुत बड़ा है. सो हाउ टू पिक अप ए स्टॉक फॉर योर नेक्स्ट डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट ऑल नो इज. अब आपका जॉनसन्स, ये एक रह गया, जॉनसन कंट्रोल हिटाची, ये भी मेरे बाय में है, ये भी अपने उसमें है एकदम ही, एकदम ब्रेकआउट पे. मैंने आज ही देखा था इसको वीकली टाइम फ्रेम पे. सर ये स्टॉक एएसएम में है.
अभी ये वो एएसएम कैटेगरी में है ये। अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैंने इसको देखा, मैं तो इसको आज ही देख रहा था बैठा कि ये क्लोज ऊपर है, बट मुझे इसकी जो क्लोजिंग है ना वो पसंद नहीं आई, ये बहुत बड़ी अजीब सी डोजी बना के गया है ये इस वीक में। इट इज शोन ए वेरी इनडिसिसिव, एकदम ही डाउन हो गया है। आई डोंट नो, सो आई विल बी वेरी केयरफुल व्हेन आई टेक सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। मार्जिन तो एरर का कम है, बट अगर नीचे आए, ये एकदम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एकदम ही जाके फुस हो गया, एकदम ये स्टॉक एकदम फुस हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा, मैंने ये देखा ही आज अपनी लाइफ में पहली बार, मैंने दूसरी बार देखा ही नहीं है, ये आया ही नहीं मेरे किसी भी स्क्रीनर्स में। आई यूज लॉट ऑफ डिफरेंट स्क्रीनर्स, मेरे तो अगर मल्टीपल स्क्रीनर्स में आ जाते हैं तब मैं स्टॉक के ऊपर नजर रखता हूँ पूरा। तो कल के लिए मैंने तो जुबलेंट को देखना है, तमिलनाडु प्रिंट्स के ऊपर नजर रखना है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स आई विल टेक इट अर्ली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, वो तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ले लूंगा, उसमें फायदा है बहुत लेने का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में उसका ऊपर का मार्जिन बहुत बड़ा खुला हुआ है। और अभी ये जो सारी कंपनी जिनका ये इलेक्ट्रिकल्स का काम होता है, इनके रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि ये समर वेकेशंस में ये सारे काफी कुछ बिकता है इनका, तो इनके रिजल्ट्स अब सितंबर में जब आएंगे तब थोड़ा सा अच्छा आने की उम्मीद होती है। सो आई थिंक सो यू ऑल हैव गॉट इट। मैंने उसको, इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ स्कैन को, इसको RSI वीकली, एंड इसका क्या नाम, वीकली Freenow. ईएमए। 10-20 EMA क्रॉस ओवर याद हो जाए ना, मैं ये हमने कोई गलत चीज नहीं करनी। सबमिट, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, आपके यहाँ से इसको। So this is the modified I'm sharing with you. You can just all copy it very well. So, so you can make it in anything. आप यहाँ पे वीकली की जगह इसको आप डेली कर लो, आप लेटेस्ट कर लो, आपका डेली का आ जाएगा, आपको स्टॉक्स बहुत मिल जाएंगे। So you'll get a lot of stocks into it if you do it in a मैंने वीकली RSI रहने दिए, बट डेली में 10-20 का क्रॉस ओवर हुए। तो कितने आ गए, 19 स्टॉक्स आ गए, इसमें ETFs भी आ जाते हैं बहुत सारे आपके। सो यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट स्टॉक्स हेयर ऑल्सो, बट आपको यूज करना है, कोई एक फंडा यूज करना है। मुझे बहुत लोग पूछे थे, सर आप कैसे करते हो, फिर इतने स्टॉक्स तो स्क्रीनर में आ जाते हैं। तो you have to devise a way, even if stocks come and bullish. I cannot take a short trade, मेरी बहुत गंदी आदत है, I cannot take a short trade, मैं नहीं ले सकता हूँ। I'm very impatient short trader, but I'm a very good patient bull also. तो मेरे अंदर बुलिश टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सबके अंदर होती है। Everybody wants to be a bull, nobody wants to be a bear. So you can make it like this also. आप इनमें ये बोल दो कि भैया नहीं, मैं तो ये डेली RSI जो है मेरा जो है ये 70 है, मैं तो तब बुलिश हूं। लो आपके पास 4 आ गए, ये 4 आ गए आपके पास। आप कल के देख लो कितने आए थे आपके पास, ये आज का होएगा ना, 24 अगस्त। 23 को कौन से आए थे, टेक्सटाइल्स के DCML, ये तो DCM, ये तो आज मेरे से मिस हो गया, ये आज, आज ये वैसे ये कल आ जाएगा। इसके ऊपर भी नजर रखना सर, ये भी वीकली में ब्रेकआउट के पास खड़ा है एकदम ही, ये एकदम अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है, ये मेरे लिस्ट में है, ये एकदम अपने वहां पे खड़ा है। फर्स्ट टारगेट हेयर 184, 182, 208 एंड सीधा फिर उसके बाद 283, 100 रुपए का मूवमेंट है। बहुत सारे स्टॉक्स टूटने से पहले ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हैं। सो 1670 के पास ऊपर अगर इसका क्लोजर हो गया, तो देन दिस विल बी ए गुड ट्रेड फॉर मी, इट विल बी ए गुड ट्रेड फॉर मी। मैं यहाँ पे एकदम एंटर कर जाऊंगा इसको मैं ना यहाँ डाल देता हूँ बिफोर आई फॉरगेट इट।
2-3 मिनट कम है। तो इसको आप now you can save this as a different for a daily kind of a trade you can do it. आपके पास 4 आ गया, आपके पास आ गया जिंदल फोटो. Let's see what जिंदल फोटो is doing. Let's see what it's doing. ये तो ऊपर चला गया. Now let's see. देखो सर, मेरे तो यहाँ लाइन पे ये रुका हुआ था, 334 से ऊपर जा चुका है. Now let's see what is doing on a weekly time frame. अभी तो आया नहीं, ये तो डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है. ये डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है. सो जिंदल फोटो मेरे पास इसलिए आया होगा, मोस्ट लाइकली मैंने इसको डबल बॉटम पे पकड़ा होगा. ये डबल वीकली डबल बॉटम बना रहा है. सो ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल 400 के लेवल. सो मैं तो जिंदल फोटो में तो एकदम बैठ जाऊंगा. एंड मेरा फर्स्ट टारगेट इज दिस 414 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 459 460 के लिए. एंड दिस इज ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम बेसिस. और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ. So this is how you pick up. I pick up stocks. So मैं देखता रहता हूँ और मैं ये अब आपका क्या कोपरन है? What I don't know. I don't know even what the company is. ये क्या करती है? I have no idea about it. लो सर, आपका वीकली का ब्रेकआउट आ गया इसमें. आज ही ब्रेकआउट आया. अब इसको वीकली में इसने डेली का ब्रेकआउट कर दिया और ये वीकली का टारगेट पकड़ेगा. फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी डन. सेकंड टारगेट इज हियर, वहां पे भी पहुंच गया. अगर ये कल ब्रेकआउट कर गया तो आपका 310 का टारगेट खोल गया सीधा ही. कल का अगर ब्रेकआउट हो गया कोपरन में, देन वी आर लुकिंग एट 310. बट अगर कल नीचे आया तो इसको स्टॉप लॉस लगा के सर बड़े आराम से ऊपर के लिए ले लेना. ऐसे ही मैंने उठाया था कैब्रिल इंडिया में. कल निकल भी गया हूँ. क्या मजेदार सा स्टॉप था ये तो. डेली का ब्रेकआउट ऊपर बाहर, फर्स्ट डे में ही बाहर आऊं. जीएमडीसी ये तो बहुत अच्छा था, रैन वेरी नाइसली. अभी लाइंस आ जाएंगी. डेली का ब्रेकआउट 190. मैंने ग्रुप में कहा था, मैंने 190 पे उठा लिया था एंड मैंने पूरा 221 पे छोड़ दिया इसको. सो if you pick up in a way, whatever way, you need to just pick up a stock where from how you are going to pick it up and then follow one principle. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. But if you mix too many principles into it, मैंने जो आपको दिखाया, this is purely breakout way of taking a trade. It's a purely breakout और कोई तरीका नहीं है. इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको कराऊंगा, that will be on a 5-day bullish scan. मतलब 5 दिन का जैसे उसने लेवल काटा, मतलब पिछले वीक में अगर चाहे वो 4 दिन नेगेटिव गया हो, 5वें दिन बड़ी कैंडल आ जाए तो आपको स्टॉक नजर आ जाएगा. So you should be able to pick up that kind of stocks also. ठीक है सर, कोई क्वेरी सर? अब इसमें कॉर्पोरेट इज अ फार्मा कंपनी. वैसे भी फार्मा में सर आग लगने वाली है बहुत तगड़ी. फार्मा इज द वन सेक्टर विच इज गोइंग टू फायर. बट आई विल फिर रिक्वेस्ट करूंगा विद फोल्डेड हैंड्स टू एवरीबॉडी इज, प्लीज जब भी आपको कुछ पता लगता है, प्लीज शेयर विद योर फेलो ट्रेडर्स. यार कोई और प्रॉफिटेबल भी होता है ना तो स्माइल बहुत अच्छी होती है. सर कृष्णा डायग्नोस्टिक एक बार चेक करोगे? कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था और आप अरे कृष्णा डायग्नोस्टिक तो पैसा नहीं बनाया आपने. बहुत इसलिए बना दिया सर. 2 लाख हाँ? रुपए 2 लाख रुपए मैंने तो कृष्णा डायग्नोस्टिक उसमें डाला के था आर ना. एस एन डबल ए के आर एस NAA एच नहीं आएगा सर. कृष्णा डायग्नोस्टिक तो मैंने शेयर किया था आई फेसबुक पे. थिंक आपने फेसबुक फेसबुक पे ही डाला था मैंने. डबल बॉटम फॉर्मेशन है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. टारगेट सर कहां से उड़ा आपका शेयर? अब ये पवन सर कहेंगे आप प्राइस एक्शन करा देते हो. सर मैं साइट पे खेलता हूं बस. आप निकल जाओ कृष्णा डायग्नोस्टिक से. आपने इससे जितना पैसा बनाना था बना लिया. ओके. अब नेक्स्ट को पकड़ लो सेम वे में. सर 100 रुपए आपने यहां से बना लिए और क्या चाहिए? बट सर इसमें थोड़ा सा ये है, इंटरनल थोड़ा सा कुछ चीजें हैं वो
उसकी वजह से थोड़ा होल्ड करा हुआ है। I am telling you, Krishna Diagnostic, if you want to hold it, do hold it. I know the promoters, मेरी बात हो चुकी है, इनको पंजाब में मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो ये कारण है, तभी ये रॉकेट हुआ है। वो पंजाब में नहीं था सर, वो उनका राजस्थान में दोबारा हुआ था, पंजाब का तो अभी नहीं हुआ है। पंजाब का हो गया ना, पंजाब का मुझे पता अच्छा, है ना। ओके 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 ओके। तो पंजाब का मुझे पता है, आई नो द प्रोमोटर्स ऑल्सो ना। जी जी पिट्टी तो साहब। हम बना के बाहर बाहर निकलो सर, मैं तो बड़ा सिंपल हूँ, पैसा बनना चाहिए। जी ये जी। एक ये पेनी स्टॉक दे जाता हूँ सबको, इस पे ध्यान रखना, इस पे ध्यान रखना। मैंने रिस्क लिया है, मैंने इस ब्रेकआउट से पहले खरीद लिया इसको, एंड आई एम ओनली वेटिंग कि ये ब्रेक करके ऊपर जाए। मेरा नेक्स्ट टारगेट इज हियर 52, 20%। थर्ड टारगेट इज, सेकंड टारगेट इज हियर 59, 60 रुपीज। मुझे सब कोई लेना देना नहीं स्टॉक क्या करता है किससे है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि माई मनी शुड ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। आई यस मे सर। बी लॉस मेकिंग, मेरा फंडा बहुत सिंपल है, मैं किसी स्टॉक के साथ मेरी मैरिज नहीं हुई है, दे आर ऑल टाइम पास फॉर मी, ये मेरे लिए प्योरली टाइम पास चीजें हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ व्हेनेवर आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, मैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर हूँ इन माय अप्रोचेस। Sir, one और quick ये question, तक sir. सर सब एक जो RHI मैग्नेस्टिया, RHI स्पेस स्पेस MEGNES, ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है सर ये, सर मैंने फाइनेंस का लाइन कुछ। ड्रॉ की हुई है सर, हाल भी देखो मेरी लाइंस ड्रॉन है। ओके। सर आपका ये स्टॉक वीकली ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आ रहा है, हम्म। ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट है, इसको तो मैं भी डाल लेता हूँ सर अपने लिस्ट में। थैंक यू। जी सर। मैं इसको, ये मेरे लिए बहुत सिंपल है, वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक करके यहाँ पे आ गया, इसको मैं बस डेली पे ये देखना है इसका क्या हो रहा है। ये यहाँ बैठ गया सर, ये बस यहाँ पे आप इसको, इट इज गेटिंग, इसका पेट्रोल भर रहे हैं और ये ऊपर जाएगा। मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ इसको, आई कैन से इट कैन गो वेरी इजिली अप टिल हियर। और ये सर जस्ट सी दिस पैटर्न, और अभी हमने जो शेयर डिस्कस किया सर यही हुआ था ना, हम्म। ये पेट्रोल भर रहा है बस, अभी ये ऊपर। हम्म। ऐसे स्टॉक सर ढूंढो, ऐसे स्टॉक ग्रुप में पोस्ट करो, एवरीबडी शुड लर्न, दिस Sir, इज हाउ यू मेक मनी सर। बोर तो नहीं हो रहे यार? नहीं, नो सर, नोट एट ऑल। क्वेश्चन है। पल्लू पेपर दिखाता हूँ, एक और पेनी स्टॉक। सर फंडा वही है ना जो बता रहा हूं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ये मंथली की रेजिस्टेंस खड़ी है ऊपर इसमें, ये देखो एकदम ही ऊपर इसकी मंथली की रेजिस्टेंस खड़ी है, ये ही 38 नहीं काट पाएगा, 38 काटेगा तो जाएगा ऊपर 47, 48 तक, अदरवाइज नहीं जाएगा, उससे पहले ही गिर जाएगा नीचे। एक और स्टॉक ब्रेकआउट का वीकली, फर्स्ट टारगेट इज हेयर जो टच कर चुका है, सेकंड टारगेट इज हेयर 152, उससे उसके बाद ये गिरेगा ही गिरेगा नीचे, ये स्विंग लेने आएगा नीचे। So you should know in which stock you are entering and what is your target is. सर एक शेयर और, एक है नेल कास्ट, NELC, इसका देखना सर, ये बार बार में रिटेस्ट। NEL, NE L कास्ट, CAST। Nelcast, पता जी नहीं ये बताया होगा सर, ये तो अपने रेजिस्टेंस पे आ गया, ऊपर ऊपर आ गया सर, ये लेवल है ना, जी जी जी। ये तो यहीं से सेल पड़ेगी इसको, डेली पे देखो यहाँ पे कैंडल बन जाएगी रेडी। सर इसके ब्रेकआउट होने की वेट करो बस, ये ब्रेकआउट ओके। होएगा तो बहुत अच्छा दौड़ेगा, इसका लेवल जो निकलेगा ना मेरे लिए हम्म। इज 40 रुपीज फ्रॉम हियर,
सो 25% रिटर्न कम से कम देगा मुझे ये। ओके सर। सर एक चेक करो ना HBL पावर। HBL पावर ये तो सर निकल गया है, इसको तो देखना भी नहीं है, ये तो दौड़ गया सर। ये तो आया, ये तो बहुत बार, ये तो सर बहुत ऊपर चला गया है ये। अगर अब आपको मैं एक बात बताता हूँ इसमें, हम्म। अब इसमें मीन रिवर्शन का गेम आएगा। मैंने अब 10 की EMA ऑन कर ली है, दूर गया वापस आया, दूर गया वापस आया, दूर गया, ये अब नीचे आएगा ही आएगा। जब ये नीचे आएगा तब इसको यहां कहीं पे पकड़ेंगे। ये अगर आप इसको ऑफसेट लगा लो ना, उसमें लास्ट 5 दिन की अगर हम ऑफसेट लगा लें, ये यहां आ रहा है, सो ये अप्रोक्सीमेट मुझे करीब 240 के करीब टाइम मिलेगा, तो मैं इसमें एंटर करूंगा। सर ऑफसेट का मतलब और बता देना सर, थोड़ा ध्यान। ला लो सर, अगर मैं ऑफसेट 0 कर देता हूँ, जी। अब मैं 10 कर देता हूँ, तो ये 10 दिन का और आगे का प्लॉट कर देता है मेरे। ओके सर। तो ये 10 कर दिया, अब मैं इसको 0 कर देता हूँ डिफॉल्ट में, ये यहीं रुक गया। ठीक है सर। उसको मत यूज करना सर, डोंट यूज ऑफसेट। ऑफसेट हमेशा गलती आपको देगा, फायदा नहीं देता। उसमें एक कैंडल का फायदा होता है इफ यू आर डूइंग एन इंट्राडे। ओके सर। इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है, पैसा सिर्फ स्विंग में बनता है और अच्छा बनता है। हम्म। ठीक है सर, फिर बंद बेसिक करें पहले सर तो एक सेकंड को रिकॉर्डिंग बंद कर दो लंबी।